everyone to Students Wala by Prachi, and today we are going to continue the chapter of the French Revolution, and we'll be going ahead with the first unit, that is French society during the late 18th century. So last class we had discussed a lot of things regarding the introduction of the chapter. We discussed some important dates. We discussed about this, why did the city of Paris go into state of alarm, and we even learned about the rumors which spread into the city. Also, that what represented the despotic power of the king. We learned about that, and which was the staple food of France, that was bread, right? So we discussed so and forth. We discussed this in a brief, right? And I gave you some homework. What was the homework? First, to write the key points. We also learned about early century, mid-century, late century. That is a different thing. Okay, that was just for your conceptual understanding on the basis of that. And along with that, we've also given you some homework. The first one was to write the key points, right? I remember everything. Okay, so to write the key points, that was one of the tasks I gave, and I hope all of you must have done that as a part of your self-study work. And another thing I gave was to just write down the vocab, right, to enrich your vocab. That was another work. So in that I also gave you some examples. What examples did I give you? Just let's rewind that. There were a lot of words, right? Militia was a new word for you all. Then I guess fortress prison was a new word for you all. Then revolution, I told the meaning of revolution, right? That maybe you all must not be knowing the definition, but I'm sorry if you are knowing that. That's another thing. Then souvenir was a new word for you, and anticipate was a new word. So these were some new words. I hope you should just maintain a dictionary for you, right? Your own dictionary in which you will make the words, and then alphabetical order. Okay, that's one thing you can do to enrich your vocabulary. Another thing we did, I gave you two more questions, right? What was those questions? First one was, why did the price of bread become high? And another question was what? Please remember. Yes. Why did the troops break out into the city, right? That was another question. So I hope you all must have figured out the answers of those two questions. Comment it down below so that I can just check it out. Okay, because these two questions answers I'm not going to tell you. I'll be telling you as we move throughout this chapter. Because this you'll be learning in the mid of the chapter in a sudden way that you will just remember that, oh, this was the thing we were talking about in the trailer, right? A lot of things we discussed. I posted the link in the description box of the previous video. Just go and check it out. If you have not watched it, you should watch it out. A lot of important terms and terminologies, they were there. So you should just go and check it out. Let's not waste our time. Let's just not beat around the bush and just come to the topic. French society during the late 18th century. So I already told you what the late 18th century mean here, right? One second. Yeah. So I told you all what this word mean here. What does this mean? It is a period between 1765 to 1799. This is the period which we call the late 18th century. Okay, and when did they demolish the fortress prison? 1789, which comes between this particular group. So we can say that that particular thing occurred in the late 18th century. I hope that's clear. Okay, so now let's see what it's talking about over here. Okay, so here it's saying in 1774, right? Now, that time we discussed about 1789. Now, here we are talking about 1774. Louis XVI of the Bourbon dynasty of kings ascended the throne of France. Now, one thing I'm just giving you as an extra point. Louis XVI, his real name was Louis Auguste. Okay, that was his real name. But instead of August, they put some titles like Louis 13, Louis 15, and so and so. And he was the 16th descendant of Louis Kingdom. Fine. So his name was Louis Auguste. Fine. This is clear. So basically, Louis Auguste ascended the throne. And now which dynasty did he belong to? He belonged to the Bourbon dynasty.
Fine, he ascended the throne of France. When did he ascend that? 1774. And I have already told you which form of government was going on that time. It was absolute absolute monarchy was going on, correct? Well, I've already made you aware with these terms, right? So absolute monarchy was going on that time. And one more thing to learn, that he was just 20 years old when he ascended that throne. 20 years old. And he was married to an Austrian princess. Now remember the name of the princess too? Marie Antoinette. Princess कौन थी? Marie Antoinette. Pronunciation goes like this. ठीक है? So he was married to an Austrian princess. Upon his accession, the new king found an empty treasury. अब क्या हुआ कि जैसे किंग ने ascend किया अपने throne को, उन्होंने देखा कि खजाने की तिजोरी तो खाली है. What will I do now? अब क्यों खजाने की तिजोरी खाली थी? Let's discuss that. तो हुआ क्या था कि सबसे पहले तो कि बहुत wars चलते थे, ठीक है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स हैड ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. अब किस लिए, किस कारण से वॉर चलते थे, ये भी एक चीज़ है. बेसिकली ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस, ऐसा कुछ वॉर चलता था, ठीक है. ब्रिटेन वॉज अ प्रोमिनेंट एनिमी ऑफ फ्रांस. तो इन दोनों के बीच बहुत सारे वॉर्स चले थे बिफोर 1774, ठीक है. जो लुई 16 के पहले जितने किंग्स थे उन्होंने भी ये वॉर करे थे. तो इन सारे वॉर्स के कारण क्या हुआ था कि जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे फ्रांस के वो डूब गए थे, ठीक है. इसकी वजह से एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस ऑफ द एम्प्टी ट्रेजरी वाज दिस. अनदर क्या था कि एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट था, एकदम इमेंस. जो वर्साइल, उनका पैलेस का नाम था वर्साइल, ठीक है. तो जो पैलेस वो जिसमें रहते थे बहुत ही बड़ा सा पैलेस था, बहुत इमेंस पैलेस था. एंड वहाँ पे लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए उनको पैसा चाहिए था, ठीक है. एवरीथिंग नीड्स मनी, सो टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ दे नीडेड मनी, ठीक है. अब वो क्या करते थे, रात में यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखते थे. वो रात में क्या करते थे, क्या किंग करते थे, किंग अपने खाली टाइम में जाके शॉर्ट्स नहीं देखते थे. किंग अपने खाली टाइम पे क्या करते थे, नाच देखते थे. नर्तकियाँ थी, ठीक है, डांसर्स वर अपॉइंटेड, तो वो ये काम करते थे, ठीक है. तो उसमें भी उनका पैसा उनको दे हैड टू पे, राइट, वो भी करना था. उसके बाद फिर लग्जूरियस फूड, लग्जूरियस क्लोथ्स, फॉर मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स आल्सो दे नीडेड मनी. सो इन अ मोस्ट प्रिसाइज वे, एक्स्ट्रावेजेंट मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट, उसमें भी बहुत सारा पैसा जाता था. अब लुई 16 के अंदर अब देखो क्या हुआ था कि उस समय क्या चल रहा था. ड्यूरिंग दैट लेट 18th सेंचुरी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, ठीक है. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या किया था, ब्रिटेन ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को कब्जा कर लिया था, ठीक है. कोलोनाइजेशन पड़ा हुआ है तो समझ आ जाएगा. 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, ठीक है, उनको ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, ठीक है. तो उनको आज़ादी दिलाने के लिए फ्रांस ने क्या किया. अब क्यों फ्रांस ने हेल्प की अमेरिका की, फ्रांस ने उन्हें थोड़े से पैसे दे दिए. अब ऐसा क्यों किया उसने, दैट इज़ द क्वेश्चन. फ्रांस क्या हुआ था वहाँ पे कि बेसिकली ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था 13 कॉलोनीज का. फ्रांस क्यों हेल्प करेगा, उन्होंने पैसे लिए, ठीक है, लेंडर्स से पैसे लिए, स्टेट लेंडर से. क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ब्रिटेन क्या था, कॉमन एनिमी था. अब अमेरिका का भी एनिमी क्या था, ब्रिटेन था. फ्रांस का एनिमी तो पहले से ही ब्रिटेन ही था. तो अब जो कॉमन दुश्मन हो गए तो क्या हो जाता है, दुश्मन, व्हाट वी से दैट इन हिंदी, कि अगर कोई दो दोस्त है उनका कोई कॉमन एनिमी है तो वो भी दोस्त बन जाते हैं ना, यही बोला जाता है ना. तो यही है कि बेसिकली उनका भी कॉमन एनिमी ब्रिटेन था, इसका भी कॉमन एनिमी ब्रिटेन था, तो दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली. फ्रांस ने हेल्प कर दिया अमेरिका को पैसे देके, जो कि ज़रूरत नहीं थी, ठीक है. अमेरिका खुद भी अपने काम कर सकता था, अमेरिका खुद को इंडिपेंडेंस गेन करवा सकता था, बट फ्रांस उसमें घुसा, उसने पैसे दिए सो दैट टू शो कि हाँ ब्रिटेन भी एक कॉमन एनिमी है, ऐसा कर दिया उसने, ठीक है. इसकी वजह से भी, अब इसकी वजह से क्या हो गया, देखो पहले से ही फ्रांस पर डेप्ट था, ठीक है, डेप्ट था पहले से ही. पहले से कितना डेप्ट था उसके पास, पहले से उसने 1 बिलियन लिवरे था वहाँ का करेंसी उस समय, ठीक है. 1 बिलियन लिवरे का पहले से ही उन पर डेप्ट था. अब क्या हुआ, अमेरिका को उन्होंने पैसे दिए तो +2 बिलियन लिवरे हो गया.
सॉरी +1, हाँ +1 मोर बिलियन लिवरे हो गया। तो इन दोनों को ऐड करो 2 बिलियन लिवरे, इसीलिए इसने कहा है पहले से 1 बिलियन का कर्ज था, 1 बिलियन का और कर्ज लग गया उन पर। अब स्टेट लेंडर्स ने भी क्या किया, थोड़ा सा फायदा उठाया। किंग ने ली थी ना लोन, थोड़ा सा फायदा उठाएंगे। क्या किया उन्होंने, 10% इंटरेस्ट लगा दिया लोन्स पर, ठीक है। तो अब तो क्या होता था कि जो भी फ्रांस अपना जैसे कैसे पैसा लाता था अपना, तो वो उसका इंटरेस्ट पे ही लग जाता था। अब वो कैसे यूनिवर्सिटीज मेंटेन करता, अपना एकदम इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल कैसे मेंटेन करता, ठीक है। दैट वाज अ क्वेश्चन। क्या हुआ था कि दे हैड टू इंक्रीजिंग परसेंटेज, 10% इंटरेस्ट लग गया था तो सारा उसी में लग जाता था। अब रेगुलर एक्सपेंसेस को, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना था, गवर्नमेंट ऑफिस यूनिवर्सिटीज को रन करना था, उसके लिए नाउ प्रैक्टिकली है कि ये सबको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो व्हाट डिड द स्टेट डू, उन्होंने इंक्रीज कर दिया टैक्स को, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल बात है कि भाई ये सब हो गया है, अब यूनिवर्सिटी आर्मी तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना, किंग है, तो उसके लिए क्या किया, स्टेट ने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। अब इस मेजर से भी, चलो ये तो प्रैक्टिकल मेजर है, हाँ होना ही चाहिए ऐसा, बट फॉल्ट क्या था एडमिनिस्ट्रेशन में कि सिर्फ थर्ड एस्टेट के मेंबर टैक्सेस को पे करते थे, थर्ड एस्टेट के मेंबर। अब ये एस्टेट क्या होता है, जैसे आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, जैसे कि हमारे हिंदुइज्म कास्ट में क्या होता है, वी हैव ब्राह्मण, क्षत्रियस, है ना, ये होता है वैश्य, शूद्रस, होते हैं ना ये 4। तो वैसे ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट सिस्टम कहते हैं ना, क्लास। एस्टेट भी एक क्लास होता है, ठीक है। 3 एस्टेट्स होते थे, यहाँ एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसको देखते हैं। पहले उससे पहले ये पढ़ लो एक बार, अच्छा ये पढ़ा दो पहले। देखो एस्टेट था 3, जो थर्ड एस्टेट था बस वही टैक्स पे करता, जो थर्ड क्लास था वही सिर्फ टैक्स को पे करता था। अब देखो 3 एस्टेट्स, जैसे हमारे में 4 क्लासेस होते हैं ना, वैसे इनमें 3 थे। कौन कौन से थे, पहला था क्लर्जी, दूसरा था नोबेलिटी, तीसरे में ये लोग आते थे। अब पहले ये जानो कि ये होता क्या है। देख बेसिकली क्लर्जी मतलब होता है इसमें जो चर्च के प्रीस्ट थे, प्रीस्ट जो थे चर्च के, वो आ जाते थे क्लर्जी के अंदर, ठीक है। अब प्रीस्ट थे जैसे हमारे पे ब्राह्मण सबसे ऊपर आते, तो उनके पास बहुत पैसा होता है, राइट, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे भी इट वाज द सेम इंस्टेंस, प्रीस्ट वर देयर, चर्च के प्रीस्ट थे तो दे हैड अ लॉट ऑफ मनी विद देम, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हो गई यहाँ पे, नोबेलिटी। अब नोबेलिटी में कौन आता था, बेसिकली नोबेलिटी में आते थे एरिस्टोक्रेट्स। इस नाम को याद रखना, मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम, हु वर द एरिस्टोक्रेट्स। नाउ सिंस इट्स नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी तो मैंने बता दिया, राइट। सो बेसिकली एरिस्टोक्रेट्स वर द रिच पीपल, जैसे कि किंग्स हो गए, ठीक है, लेंडर्स हो गए, ये सब किस में आते थे, नोबेलिटी के अंदर वो आते थे। जैसे हमारे में क्षत्रियस होते हैं वैसे इनमें एरिस्टोक्रेट्स था। अब हमारे में वैश्य शूद्रास आते थे, है ना, मिडिल क्लास ये सब जो थे, वो सब को कंबाइन करके थर्ड एस्टेट बना दिया इन्होंने। जो कुछ कुछ पढ़े लिखे बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, लॉयर्स थे, इतने तो अमीर नहीं थे ना, बट मिडिल क्लास थे, तो इनको कहो कि मिडिल क्लास जो लोग थे, जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, छोटे छोटे पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, सर्वेंट्स थे, वो सब थर्ड एस्टेट में आते थे। अब पीजेंट का मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफन you all use this word peasant a lot, but you don't know what's the meaning of peasant, ठीक है। peasant basically पुअर स्मॉल होल्डर होता है, या फिर एक एग्रीकल्चरल लेबर, ओके, ही इज एन एग्रीकल्चरल लेबर ऑफ लो सोशल स्टेटस, इसका सोशल स्टेटस लो हो, उसको पीसेंट कहते हैं, ठीक है। अब फॉल्ट देखो यहाँ पे, थर्ड एस्टेट के लोग ही टैक्सेस पे करते थे। अब सबसे अमीर कौन था, क्लर्जी और नोबिलिटी थे ना अमीर, इन दोनों को टैक्स पे करने से एक्सटेम्पशन था, मतलब इन्हें मना थी, इन्हें टैक्स पे ही नहीं करनी थी, बिकॉज दे हैड सम फ्यूडल प्रिविलेजेस, बाद में पढ़ेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि इनके पास बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस होते थे, ठीक है, तो इसीलिए इनको टैक्सेस पे करने ही नहीं पड़ते थे। बट किनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, सिर्फ थर्ड एस्टेट को। थर्ड एस्टेट में तो कितने गरीब गरीब लोग हैं, यूसी पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, इतने सारे। एंड आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द पार्ट कि 90% पॉपुलेशन किसकी थी, पीजेंट्स की थी, ठीक है, 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स की ही थी। तो इतने लोग जब गरीब थे, इतने ही लोग टैक्स पे कर रहे थे। नाउ यू कैन थिंक इनकी वेजेस कितनी कम थी, स्मॉल थे, पीजेंट्स थे, so their wages were very low. Can you imagine how did they manage to pay the taxes? So this was the fault in the system. What must Louis XVI have done? He must have told कि all the first and second estate, मतलब तीनों estates को equally देना है, या तो सिर्फ first और second estate को देना है,
ऐसा कर देना चाहिए था, बिकॉज दे वर द वेरी रिच पीपल, एरिस्टोक्रेट्स वही थे ना, तो दैट्स वाई। ठीक है, हम नीचे आते थोड़ा सा। नाउ दिस वन, the society of estates was a part of the feudal system, okay, that dated back to the middle ages. Now what is the feudal system? एक word है feudalism, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं। फ्यूडलिज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। तो देख, फ्यूडलिज्म कम्स फ्रॉम अ जर्मन वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्यूड। किस वर्ड से आया? एक जर्मन वर्ड से, जिसका मतलब होता है फ्यूड, एंड इसका मतलब होता है एक पीस ऑफ लैंड। व्हाट डज इट मीन? अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई पीजेंट है, ठीक है, उसने राजा को थोड़ा सा सर्विस दिया, मान लो मिलिट्री में सर्विस दे दिया, तो राजा उसको गिफ्ट में, ग्रांट में क्या देगा? एक लैंड देगा, ठीक है। क्या किया मैं बार बताती, नहीं समझ आया हुआ। पीजेंट है या कोई भी लो सोशल स्टेटस का इंसान है, उसने राजा को मिलिट्री में हेल्प कर दिया, ठीक है, तो राजा ने गिफ्ट के तौर पर उसको एक लैंड गिफ्ट कर दिया, इसको कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। तो जो एस्टेट्स की सोसाइटी थी वो फ्यूडल सिस्टम पर ही बेस्ड थी। ये एक मीनिंग हुआ फ्यूडलिज्म का। एक और मीनिंग होता है कि बर्थ से ही जो बड़े बड़े कास्ट के लोग थे, जैसे फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट, उनको बाय बर्थ बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, जिसको कहते हैं हम लोग फ्यूडल प्रिविलेजेस, मतलब यूनिक राइट्स विच इज एंजॉयड बाय बर्थ, उसको फ्यूडल प्रिविलेज कहते हैं। तो जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी थी, उनको फ्रॉम द बिगिनिंग उन्हें बाय बर्थ ही दे वर गिवन feudal privileges, means unique rights which they enjoyed from birth, ठीक है। this was one point। तो this was the society of estates, इसी पर डिपेंडेंट था society of estates। एक की बाय बर्थ उन्हें प्रिविलेज मिलेंगे, एंड दूसरे जो हाई जो हेल्प करेंगे उन्हें लैंड मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। नाउ यू कांट फोर्स एनीवन टू जस्ट गो एंड हेल्प द किंग इन द मिलिट्री, इवन इफ द किंग इज नॉट responding nicely to the peasants or any person of low social status. That's not the thing, right? Okay, another thing is that the term old regime. Now this is old regime. दो terms होते हैं, एक होता है old regime, एक होता है new regime. Old regime मतलब French society and institutions before 1789. ये हो गया before 1789, and new regime is after 1789. ठीक है, new regime after 1789 था and old regime before 1789. Fine. अब एक चाहते हैं, अब देखो फिगर 2, दिस वाज द फिगर 2, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्सप्लेन्ड यू, शोज हाउ द सिस्टम ऑफ एस्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब देखो ये मैंने बताया तुमको कि पीजेंट्स कितना पॉपुलेशन बनाते थे, दे मेड अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन अब देखो, अब पीजेंट्स कितना पॉपुलेशन बनाते थे? 90% पॉपुलेशन बनाते थे, बट जो 60% लैंड था, पूरे फ्रांस में जो 60% लैंड था, वो किसने होल्ड किया था? फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट ने ये होल्ड किया था, जबकि 90% पॉपुलेशन किसका था? पीजेंट का था। इकोनॉमिक्स में पहले चैप्टर में पढ़ना है अबाउट राइट टू इनहेरिटेंस, ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये देख लेते हैं कि 90% के पॉपुलेशन किसकी थी? पीजेंट्स की थी, बट 60% किसने होल्ड किया था? फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट ने। तो यू कैन सी हाउ अनडेमोक्रेटिक इट वॉज। आई कैन से अनडेमोक्रेटिक, आई कैन जज इट बाई the saying it, so you all get it, समझ ही रहोगे क्या हो रहा है। मेंबर्स जो थे फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के, उन्हें प्रिविलेजेस मिलते थे बाय बर्थ, एंड व्हाट वी कॉल दोस प्रिविलेजेस? फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब फ्यूडल प्रिविलेजेस में एक और टर्म आता है फ्यूडल ड्यूज, मतलब कि वो ड्यूज एक्स्ट्रा, वो मनी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे पीजेंट से, ठीक है, कैसे भी फोर्सफुली ही मनी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। तो ये फ्यूडल, नहीं मनी लिया उन्होंने तो उसका लैंड पूरा अपने अंदर कर ले, वो फ्यूडल ड्यूज था। तो नोबल्स जो थे वो फ्यूडल ड्यूज का भी प्रिविलेज एक्सट्रैक्ट करते थे। फिर पीजेंट्स थे, दे वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज। अब उन्हें क्या था कि उन्हें लॉर्ड को सर्विसेज देना था, हाउस में वर्क करना था, फील्ड में वर्क करना था, इवन उनको रोड बनाने में हेल्प करना था, आर्मी में हेल्प करना, इन सारे काम करने पड़ते थे। बट वेजेस कभी इंक्रीज नहीं हुए, वेजेस जैसे थे वैसे ही थे, दे डिड नॉट इंक्रीज बाय पेस एज द अगर स्टार्ट किया जाए, मान लो ये थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, इतना हुआ, बट प्राइसेस इतने हैं, दाम उनका इतना ही मिल रहा है। यू कैन सी एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, बट उनको वेजेस उनकी वहीं पे स्टैटिक है। वेजेस कहाँ है? वहीं पर स्टैटिक है। यही होता था उस समय।
ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती थी, बट एक्सपेंसेस भी उतनी ज़्यादा ही इंक्रीज होती थी. फाइन. ओके, नाउ दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, आई टोल्ड यू. नाउ चर्च. अब 3 तरह के टैक्सेस होते थे. ठीक है, बेसिकली इन द एग्जामिनेशन अगर एमसीक्यू में आएगा तो 2 मार्क करना, बट बेसिकली 3 होते थे. कंपेटिटिव लेवल के लिए 3 होते थे. ठीक है, टैक्सेस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया था? 3 कैटेगरी में. पहला होता था टाइल, दूसरा टिथेस एंड तीसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, अब देखो, टाइल बेसिकली वो टैक्स होता था जो, क्या होता था टाइल, जो स्टेट को पे करना पड़ता था. ठीक है, तुमको स्टेट को पे करना होता है. जैसे हम वी गिव जीएसटी, सो इन द सिमिलर वे देयर वाज टाइल which had to be directly paid to the state. Up tithes, it was a kind of feudal dues. Okay, who extracted this? The clergy extracted it. Clergy extracted it as 1/3, as they extracted as 1/10 of the agricultural produce. Whatever the produce was there, agricultural produce. Fine. देन वॉज द इनडायरेक्ट टैक्स. अब क्या होता था उस समय कि सॉल्ट था, नमक, टोबैको था, इस पर भी उन्होंने टैक्स ले लिया था. किससे? पीजेंट्स से लिया था. ठीक है, क्लर्जी और इनको तो, नोबिलिटी को तो एक्सटेंशन था पे करने से, तो बस उन्हीं से लिया जाता था, थर्ड एस्टेट से. सो यू कैन सी दैट इनकी इतनी हालत खराबी थी, पीजेंट्स की हालत तो और ख़राब हो गई अब तो, है ना. क्या हुआ था? द रिच बिकेम मोर रिचर, द पुअर बिकेम मोर पुअरर. कैन सी दैट. यही हुआ था फॉल्ट जो था सिस्टम में. आगे बढ़ो, ये पिक्चर देखो आप. नाउ दिस पिक्चर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग वट एवर वी हैव लर्नड राइट नाउ. आई विल एक्सप्लेन दिस पिक्चर टू यू नाउ. फाइन, लुक एट इट वेरी केयरफुली बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट दो. सी, देखा जाए इस पिक्चर को तो क्या दिख रहा है? बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड. पहले इसको पढ़ते हैं. द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग. इस पुअर फेलो को किससे कंपेयर किया गया है? पीजेंट से कंपेयर किया गया है. 1 मिनट. हाँ, इस पुअर फेलो को पीजेंट से कंपेयर किया गया है. ये पुअर फेलो जो है सब कुछ लाता है, ग्रेन लाता है, फ्रूट लाता है, मनी लाता है, सैलड लाता है. जो फैट लॉर्ड है, इनको फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट से कंपेयर किया गया. ही इज बीइंग कंपेयर्ड विद द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट. तो जो पीजेंट है वो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के लिए सब कुछ कर रहा है. And the fat lord, he is ready to accept everything. He does not even care to, grace him with a like thoda sa adar, to give him some respect. But no. Fine. So now the question is saying कि nobleman is the spider, peasant is the fly. ठीक है? The more the devil has, the more he wants. तो nobleman को किससे कंपेयर किया गया? स्पाइडर से. peasant को फ्लाई से. अब इसमें थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है. ठीक है, क्या मुझे बताना है इसमें कि क्यों आर्टिस्ट ने नोबल मैन को स्पाइडर बोला है एंड पीजेंट को फ्लाई बोला है. दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल. सो नाउ सी, लेट्स यूज सम कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस हियर. ओके, सो वी नो अबाउट पैरासाइट्स. आर वी अवेयर ऑफ दिस टर्म? यस, वी नो व्हाट अ पैरासाइट इज, राइट? सो वी आर अवेयर ऑफ दिस टर्म पैरासाइट. क्या होता है पैरासाइट? जो होस्ट पर फीड करे अपने न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए, उसको पैरासाइट कहते हैं. स्पाइडर क्या होता है? स्पाइडर इज अ पैरासाइट. तो स्पाइडर यहाँ पे है पैरासाइट. ठीक है, तो अब अगर स्पाइडर पैरासाइट है तो क्या करेगा? वो फ्लाई पर फीड करेगा, क्योंकि फ्लाई उसके जाल में आएगी, तो ही विल फीड ऑन द फ्लाई. सिमिलरली हियर व्हाट इज हैपनिंग कि इन द 18th century फ्रांस क्या होता था कि नोबल्स दे एक्सप्लॉइटेड द पुअर पीसेंट्स under the protection of the government, that too under the protection of the government, and they extracted feudal dues, manorial dues, what all not they extracted, right, in the form of tithes, tile, indirect taxes, सब extract किया उन्होंने, right, in the same way as spider feeds on fly. So artist क्या कहना चाहता है? Artist wants to say कि peasants क्या थे, वो easily trap में आ जाते थे noblemen के, flies easily spider के trap में आ जाते थे. ठीक है, एंड क्या करता था नोबल मैन? दे मेड देम डू एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. जैसे कि रोड बनाना, हाउस बनाना, फील्ड पर काम करना, आर्मी में काम करना. सो दे मेड देम डू देयर एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. एंड लाइक द स्पाइडर, नोबल्स टू फेड ऑन द पीजेंट्स. दिस इज व्हाट we say it as
simile. We are comparing, right? We are comparing it. So that's a simile, and we have a metaphor too. That's another literary device. We'll not be discussing that right now. So this is still where we have learned today. Okay, this is the ending of today's unit, and I guess we have learned a lot today, right? It was a lot today. Okay, so I explained you, what all did I explain you? Let's do a quick recap. I explained you about the three forms of taxes which were taken, the three estates, and the introduction to a new king in the old regime, Louis XVI. Right? And something extras I told you, just keep a note of that. Now, let's come to the homework again. So, I don't think there were a lot of new words today, according to me. ठीक है, कुछ तो ज़्यादा न्यू वर्ड्स थे नहीं, क्योंकि मुझे तो कोई न्यू वर्ड मिला नहीं कि मुझे मतलब बताना पड़े. So what you are going to do is, yeah. So you are going to make a flow chart. ठीक है, फ्लो चार्ट किसका? एक तो इसका फ्लो चार्ट बना लोगे. एंड आई टोल्ड यू एरिस्टोक्रेट कुछ न्यू टर्म्स बताया था, उन न्यू टर्म्स को लिख लेना है. फ्लो चार्ट बनाकर उन न्यू टर्म्स को लिख लेना है. एंड यू आर गोइंग टू डू द पिक्चर रीडिंग ऑल्सो. एक बार जो पिक्चर एनालाइज द पिक्चर वंस अगेन, मैंने तो करवा दी ना. एनालाइज द पिक्चर एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, राइट in your own words. I'll post the homework in the description, don't worry. But यहाँ भी बता दे रही हूँ, अब से उसमें भी पोस्ट कर दूँगी. ठीक है, तो फ्लो चार्ट बनाना है, न्यू टर्म्स टर्मिनोलॉजीज लिखनी है, फ्लो चार्ट को खुद के टर्म्स में लिखना है. एंड इफ यू फाइंड एनी न्यू टर्म्स, so to enhance your vocab, you do this. And those who have not watched the first one, the first video, go through that and do that also, because that is also a task you have to do. Fine. And then you have new words, right? You have new words, livery, clergy. That's not very important because I gave you all the words, so you can just go through that. Next class, what we'll be doing, let's see that also. Okay, so next class we'll be discussing the struggle to survive and a growing middle class envisages an end to privileges. This is what we are going to do next class, and along with that we'll have a new, a separate video that will be for sources. Okay, only for sources. It will be a separate video. We'll be discussing the source A and the activity given over here, because many a times questions are asked from this also. It's a very important source. Okay, I'll explain line by line this source so that it's very, very clear to you all. Fine. And many new words you will find from the source, right? A lot of new words. You will even fill you're going to fill one full page to write all those words. So it's a very important topic. Fine. So I hope it was everything clear, it all went good. And again, I would just repeat one thing. If you have any doubts, just comment it. I'm gonna, I am definitely gonna just reply to your whatever doubts you have. Okay, fine. So I hope again you are enjoying learning, and have a good day. Enjoy learning. Just learn it, absorb it, experience it practically. Everything you're just going to do, and be mentally prepared for any exam, because we together are going to ace all the examinations. If it is your internal assessment or your CBSE assessment, whatever it is, practical exams and all that. For practicals, like in biology we'll have a lot of practicals, and physics will have a lot of practicals. So I can't show you the practicals over here, right? So I'll just post some very good videos which I find from YouTube, which you should watch as a practical. So I'll just post these links there in comment section. Just go and watch it, because that will be a very, very important resource for you all. That's it. Now I'll not take much of your time, because we are already lagging behind in the syllabus, and I want you to complete the syllabus at glance, right? So let's meet the next day. We'll be doing whatever we have discussed right now. Do the homework and be sure to comment your doubts. Okay, fine. Thank you very much. Have a good day. Have a good learning experience. Thank you.